हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 41st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, राज की बात एमएसएमई के साथ। नविद्यम नागपुर का एकमात्र ऐसा डेस्टिनेशन फॉर मैरिजेस, फॉर पार्टीज, फॉर सेलिब्रेशंस, फॉर गेट टुगेदर्स, फॉर हैप्पीनेस। बता दूं आपको कि नागपुर शहर में नॉर्थ स्टार नविद्यम, इस्टोरिया नविद्यम एंड द बेस्ट ऑफ फूड इज एट उत्तर दक्षिण। बहरहाल धन्यवाद करूंगा सिथ स्प्रे अरोमा साइंसेस का, जो आपके जीवन में खुशबू तो लाता ही लाता है लेकिन खुशियां भी लाता है। साथ ही साथ रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, प्रीमियम पिकल। और धन्यवाद देता हूं मैं मेरे हॉस्पिटल पार्टनर आदरणीय डॉक्टर समीर अरबट को, जिनका क्लिनिक है वन हेल्थ केयर। आज की मेरी मेहमान घर बनाती हैं, ऐसे घर जिसे बनाने के लिए कुछ कहते हैं सीमेंट को जान चाहिए। वो कहती हैं हमारे यहाँ से आप कोई भी सीमेंट ले, उसमें जान नहीं, उसमें खुशियाँ होती हैं। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान द वन एंड ओनली सानिया रामचंदानी, जिसे कई सारे लोग उनके शादी के पहले के नाम से भी जानते हैं, और नाम है उनका मधुमती जी। मधुमती जी, कैसी हैं आप? हेलो राज, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। सानिया जी, ओजार्क एंटरप्राइजेज, 1 साल पहले आपने ये कंपनी की शुरुआत करी। प्लीज हमें थोड़ा बताएं ओजार्क एंटरप्राइजेज के बारे में। या हेलो एवरीवन, आई एम सानिया ऋषि रामचंदानी। आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर. आई हैव स्टार्टेड दिस firm Ozark Enterprises a year back. I basically deal into cement, building materials, whatever I use in the construction industry. मेरे करियर की शुरुआत मैंने सीमेंट इंडस्ट्री से की थी, फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सीमेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दैट इज अंबुजा सीमेंट. I started my career as a job in the company and I worked over there for almost 8 years. So when I stepped into this industry, as we all know that the construction industry and this industry, there is a vast difference, especially for the female employees, as when I stepped down, I was the only female employee across Maharashtra working in the cement industry. So it was a bit challenge also for me to move ahead, and basically as my quality is, I don't feel that I am in any way less than the other human beings. I have that capability to prove myself. So I took it as a challenge to prove myself, and I continued my journey till now in the same industry. So after almost 8 years working in the industry, due to some reasons, I had to make a balance between my personal and professional life. So I decided to switch the job. And I cannot say that I am a business woman. Destiny मुझे यहाँ तक लेके आई है, and I think जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So I started my own business, taking that experience of cement, whatever I had, and almost working for 8 years in Nagpur city. I had good contacts with the people working in this segment, so it became beneficial for me to move ahead of this. जब आपने इस काम की शुरुआत करी, जब आपने ओजार्क एंटरप्राइजेज की शुरुआत करी, लक्ष्य क्या था? करना क्या चाहते थे? लक्ष्य से याद आया, एक्चुअली मेरे बेटे का नाम भी लक्ष्य रामचंदानी है. ओके. सो आई स्टार्टेड दिस फर्म ऑन हिज बर्थडे ओनली लास्ट ईयर. बेसिकली whenever we are working in this construction industry, it is not limited to us, we can say a city or a limited. We have to keep on. जैसा I said कि मेरा कुछ business related ये नहीं था, मेरा just working है कि I want to work in my industry and move ahead and achieve new milestones. So as I left job due to the territory reasons, I wanted to stay back in Nagpur because I have my family, my in-laws, my husband is also in a corporate. So to balance all that things was a challenge. Maintaining my both professional life as well as personal life, we can say. My son is also very small, so I had to maintain all the things. Just maintaining the personal and not professional life, and maintaining the professional and not personal life, I want to create a balance. So this was the major reason
that I had to stay in Nagpur. So I started to move ahead. I started my own business. नाम ओजार्क क्यों रखा? What I can say, ये नाम के पीछे भी मेरा हस्बैंड का है. Actually, during lockdown, as everyone knows, we were limited to our houses. So this name inspiration came from Netflix. तो इसका meaning है to be strong. Actually, Ozark, I think it is a name of city. So we were just searching for a name, as cement is strong. I also feel being a woman in this industry, I am also very strong, and वही रिफ्लेक्शन मुझे अपने फर्म के नाम में करना था. सो आई चूज दिस नेम. ओजार्क एंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिवली कौन से सीमेंट को सप्लाई करने का काम करता है? या बेसिकली इन सीमेंट इंडस्ट्री देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ डीलर एंड रिटेलर. डीलर मीन्स डायरेक्टली वी डील विद द कंपनी. सो आई एम ऑथराइज डीलर फॉर न्यूओको ब्रांड. It is based across India. It is basically a multinational firm. It is dealing in cement and various kind of building materials, like we can say wall putty. There are very construction chemicals, all that. So I got an offer for this cement to be a dealer from one of my contacts. And apart from this, I deal in all types of cement, Ambuja, Ultratech, whatever cement brands are available in the market as per the customer need. जब आपने ओजार्क की शुरुआत करी, पहला ऑर्डर किसकी तरफ से आया, और वो जो कस्टमर से रिलेशनशिप और बॉन्डिंग जो बनती है उसको आप कैसे देखते हैं? Whatever जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 10 years में इन द सर्विस इंडस्ट्री, योर रिलेशन विद द कस्टमर इज़ डिपेंड ऑन योर सर्विस ओनली. कि इंडस्ट्री में टाइमली सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सीमेंट, वट एवर वी कैन से. तो मेरा जो शुरुआत थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से ही मुझे मेरा ऑर्डर मिला है. माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज इन हिंगना. इट वॉज थ्रू अभिजीत ग्रुप एंड इट वॉज वन ऑफ माई प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स. सो मैंने वहाँ पे अराउंड 150 बैग्स का मैंने ऑर्डर सप्लाई किया. क्या बात है, 150 बैग्स? या फर्स्ट ऑर्डर. ओके. तो 150 बैग से शुरुआत हुई, आज हज़ारों बैग्स का काम आप करती हैं. कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये जो रिलेशनशिप बनाना है, 1-to-1 मैन-टू-मैन हैंडलिंग है, ये किस तरह से की जाती है? Actually, it depends on your personal capabilities also. As I said already, when I was in job, I was only female employee at that time. जी. So at that time also it was challenging to deal, काम से ज़्यादा to deal with the mentality of the people as they have never seen. So same challenge also I can say, because in Nuvoco I am basically a wholesaler. I deliver cement to the shops जो मेरे retailers हैं. So to meet with them, उनसे रेट्स की बात करना, negotiate with them, रिकवरी से लेके ट्रैकिंग ऑर्डर से लेके everything I do personally. So ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरा पहले जॉब प्रोफाइल इट वॉज इन टेक्निकल. नाउ इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, क्योंकि एक शॉप पे जाके टू डिस्कस विद देम. एंड उनके लिए भी एज अ डीलर, आई एम द ओनली फीमेल डीलर, एज ए सेड कि अभी भी महाराष्ट्र में मैं आई थिंक अपने बलबूते पे आई एम मे बी द फर्स्ट डीलर. देर आर मैनी फीमेल्स हु मस्ट बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, बट मे बी उनका कुछ सपोर्ट बेसिकली उनके हस्बैंड या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स से होगा. So ऐसे करते it was a challenge to deal with the mentality, but I hope the situation will change with time. फैमिली ने कैसे रिएक्शन दिया कि अरे लड़की हो, सीमेंट के लिए काम कैसे करोगी? As I can say, I am from the Sindhi community, and this community is, as we can say, it is a part of society. Normally there are I can say we all know after marriage there are some restrictions, as we have to manage all the things. But I can say my family is very supportive. My in-laws and my husband, he is a pillar behind, because this work, we can say, in the construction industry, it is a 24/7 work. There is no limitations. I deal in ready mix concrete also, so it is a 24/7 job. Even I get calls in the early morning 5:36 till late 11. So of course I cannot say the complete mentality will change. There are some challenges
sometimes I face legal challenges also related to the finances. But as I said, I am always working for more than 10 years. तो my family का बहुत बड़ा support है. Looking to the time restrictions and all the things, they manage my house very well, my in-laws. So तो आपको जब आप घर में रोटी बनाती रहती हैं फैमिली के लिए या कुछ स्पेशल खाना बनाती रहती हैं और सडनली आपको फ़ोन आता है, अरे मैडम 200 बैग 500 बैग सीमेंट चाहिए, तो कैसे रिएक्ट करती हैं? मेरा रिएक्शन तो बट ऑब्वियस है, बट उससे ज़्यादा रिएक्शन मेरे फैमिली मेम्बर्स का है. बिकॉज जैसा राज आपने बताया, ये तो डेली की बात है. आई गेट कॉल्स फ्रॉम द मॉर्निंग. 7 बजे से शुरू होता है. सो वी शुड थैंक टू द ब्लूटूथ स्पीकर्स और हेडफोन्स, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ईजी है. बिकॉज मॉर्निंग 7 to 9 इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स एंड बी टू ऑफिस ऑन टाइम एंड फील्ड. तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि कॉल्स एंड व्हाट वी कैन से कि चलते रहता है. अच्छा, लेकिन अब चूंकि 1 साल पूरा हो गया, कोरोना काल ही पूरा हो गया है, सब चीज़ें खुल गई हैं. अब बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में लग गई हैं. जो लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर को बनाने के पीछे लग गए हैं, क्योंकि घर की एक अलग प्राथमिकता लोगों को समझ में आई ये कोविड के दौरान. तो अब कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. आपको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हैं? यस, डेफिनेटली आई वुड से कि हम लोग को तो अच्छा लगता है कि हम लोग साल भर ही बिजी रहें. एज वी कैन से कि अर्ली फर्स्ट लॉकडाउन से ज़्यादा चैलेंजेस वी फेस्ड आफ्टर द सेकेंड लॉकडाउन. बिकॉज आई सेड, जैसा हमारा न्यूवोको ब्रांड है, इन नागपुर में जो भी सप्लाई होता है दैट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज. वन इज़ चंद्रपुर प्लांट एंड अदर वन इज़ फ्रॉम रायपुर. तो ड्यू टू मैनी फैक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक होता है, अभी भी शुरू है ड्यू टू कोल फैक्टर्स. ये 6 मंथ्स सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस हैं, सप्लाई है, डिलीवरी है. सो वी आर होपिंग द बेस्ट आफ्टर दिस दिवाली की. काफ़ी हमको जो challenges हुए थे लास्ट 6 months में, we can upcome and go back to our business in a routine way. आप चाहती तो आप 3-4 ब्रांड्स के साथ काम कर सकती थी सीमेंट के, लेकिन आपने अपने आप को एक्सक्लूसिव क्यों रखा एक ब्रांड के लिए? एक्सक्लूसिव इन द सेंस, हर कंपनी का दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू वर्क. बेसिकली डीलरशिप एक ऐसा है कि इट इज़ जस्ट गिवन ऑन योर एक्सपीरियंस बेसिस. दो आई हैड एक्सपीरियंस इन माई टेक्निकल बैकग्राउंड, बट ट्रेडिंग करना, फाइनेंशियली उसमें इन्वॉल्व करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो ये जो न्यूयॉर्क का मुझे ऑफ़र हुआ था डीलरशिप, दैट वाज ऑन माय कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशन बेसिस पे. एंड डील तो मैं अभी भी सभी ब्रांड्स में करती हूँ. एंड इन द रिसेंट आई कैन से कि मुझे 2-3 ब्रांड्स का और ऑफ़र आया है. सो आई विल कीप एडिशन टू दैट एंड कीप ऑन improving and adding more brands to my cap, I can say. सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है. अमरावती में आपका जन्म हुआ, अब आप नागपुर में रहती हैं. कितना कंफर्टेबल है अपने इस जोन में, कितना एंजॉय करते हैं? एक्चुअली आई एन्जॉय माई वर्क अ लॉट. मेरे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट है या once I come to the office मैं भूल जाती हूँ कि घर and all. many of the times I get calls also, I have to be, but I enjoy my work. and after 10 years मुझे नहीं लगता है, even if there is some male dominancy, I see everyone as a human being. I cannot see the difference between a boy and a girl. जो वो difference था मेरे लिए, it is over. I am just a human being like them. I am working like them, and I hope कि society में ये difference cover up हो जाए. एंड एक और चीज़ मुझे बोलना है, आई होप, अभी तो मैं नागपुर में ही डील करती हूँ, आई होप टू कीप ऑन एक्सपांडिंग माई बिजनेस टू द अदर रीजन्स ऑल्सो. सानिया जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे. सपना क्या है आपका? सपने तो बहुत सारे हैं. टू बी द बेस्ट वट आई कैन डू. जो भी मैं करूँ, मे इट बी कुकिंग, लुकिंग आफ्टर माई किड्स, जो भी मैं जॉब करूँ उसमें आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट. सो अभी तो मैं सीमेंट में वर्क कर रही हूँ. सो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट डीलर
of Nagpur city on part of service, on part of relation. जैसा बोलते हैं ना सीमेंट सोचो, तो एक होता है ना एक ब्रांड का नाम हमारे दिमाग में आता है. सो मेरा एक ये थॉट है कि सीमेंट सोचो, अगर सीमेंट लेना है तो ओजार्क एंटरप्राइजेस से लेना है. ओके. VILEW के साथ कैसे आप जुड़ी और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म रहा वो? या फर्स्टली आई कैन से VILEW जो मैं जुड़ी हूँ उनसे थ्रू वन ऑफ माई कलीग पूनम गुप्ता. वी आर बेसिकली प्रोफेशनल कलीग्स. तो जी. उनके थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला इन द मंथ ऑफ लास्ट दिसंबर आई कैन से. पूनम गुप्ता का इंटरव्यू परसों ही हुआ है. या जी. सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री. हमारे कॉन्टैक्ट भी प्रोफेशनली है फ्रॉम पास्ट 4 years. जी. तो पूनम के थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला कि इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. दे प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेसेस एंड शी प्रपोज्ड मी टू नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर द अवार्ड जो उनका वुमेंस डे रिलेटेड सेलिब्रेशन था. सो दिस ईयर आई वॉज द विनर फॉर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन ट्रेडिंग. So I am very much thankful. This is my first live interview that I am giving on my work profile. So I am very much thankful, grateful to VILEW that they have given me this platform to express my work. Promotion, there are n number of ways we can do, but in such a way they promote women entrepreneurs. That is completely appreciable. Commendable. Yeah, and I am an executive member also after winning, being a part of the team. I'm the executive member of VILEW and I hope more such women entrepreneurs become a part of VILEW across not only Vidarbha from different parts of the country and keep moving ahead in life. आज सानिया जी आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ओजार्क एंटरप्राइजेस जो आपकी कंपनी है उसके बारे में हमें अवगत कराया, आपके काम के बारे में अवगत कराया. और ये सुनकर कितना गर्व महसूस होता है, या आपको तो बड़ा गर्व महसूस होता ही होगा कि एक कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर महिलाओं को देखा ही नहीं जाता. मैंने ये बात पूनम गुप्ता जी के शो पे भी कही थी कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर महिलाओं को देखा ही नहीं जाता, लेकिन आप वहाँ पर काम कर रही हैं और आप सक्सेसफुली काम कर रही हैं. ये बहुत बड़ी बात है. तो आप ऐसे ही सक्सेसफुली काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? ताकि हर कोई जब सीमेंट खरीदे तो आप एक ही चीज़ कहें कि सीमेंट चाहिए तो सिर्फ ओजार्क एंटरप्राइजेस से चाहिए. Thank you very much. Lastly, I just want to thank each and every member in my life, my family, my parents, my husband, all those who are connected with me professionally to VILEW. To I can just express gratitude that they have given me an opportunity. They understand me, and all my customers also, those who support me, have faith in me that we can deliver whatever we deliver on time and continue the relation with us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sania. It's nice meeting you. It's an honor. Thank you so much. Thank you. सानिया रामचंदानी एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं. कितना गर्व महसूस होता होगा सानिया रामचंदानी के पूरे परिवार को, उनके माता पिता को, उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, उनके हस्बैंड को, कि वो एक इस किस्म एक ऐसी राह पे चल रही हैं जिस राह पर बड़े गड्ढे हैं साहब. मतलब मंजिल जो है वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो रोज़ इस रास्ते पर चलती है और बिल्कुल शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चल रही है. और आने वाले दिनों में अगर आप किसी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में धन्यवाद देते हुए उनके कंपनी के ओनर को आप देखें, और अगर वहाँ पर आप ये देखें कि सानिया रामचंदानी जी को धन्यवाद किया जा रहा है, तो वहाँ पर उन्हें ज़रूर कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा और ये इंटरव्यू ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू एक शुरुआत है वो शांति की जिसमें तूफान भरा हुआ है. उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को शेयर करेंगे, उन सब तक पहुंच सकता है, बिजनेस भी किया जा सकता है, उनको वो मौका मिले और वो उस इंडस्ट्री में काम करे और आगे बढ़े.
कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार के साथ एक बड़ा अच्छा वक्त बिताएं और जब भी घर बनाएं सीमेंट ओजार्क एंटरप्राइजेस से ही लें। जिंदा रहें। जय हिंद।